सो है गाइज, दिस इज़ अ सेकेंड पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड हमने राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइक फ्रीडम ऑफ रिलीजन तक छोड़ा था. सो what we understand, like what we are going to understand from these articles, like we have the freedom of conscience and religions and what we are believe. If you are atheist, that's okay. If you are theist, it's okay. If you are polyatheist, it's okay. If you are monoatheist, it's okay. So citizens are free to believe in any religion, practice, profess and propagate religion, and like you can go, you can like tell about your religion to the people across the India. You can go home by home, person by person. You can talk about your religion, so it's free. Like I mentioned already कि जिस तरह like आप अपने for example, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं और किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, बट हाँ वो लाइक एक शांति से हो, एक उसकी डिसिप्लिन हो, कुछ मॉरलिटी प्रिंसिपल्स के साथ आप कर सकते हैं. आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं अपने धर्म के रिगार्डिंग, और आप लोगों को जाकर आप ये लाइक अपने धर्म को लाइक प्रोपोगेट कर सकते हैं, राइट. हाँ, जैसे कि मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स के अंदर पहले बताया कि जैसे कि फर्स्ट जो मैंने कोट आपको बताया था, तो उसके अंदर ये बात थी कि everyone has to like right to express their, but you know, like everyone has to right to reject any opinion, but you can't have a, like you don't have a right to prevent that expression, right. मतलब मैं आपके बात मान नहीं सकता, ये मेरा हक है, बट हाँ मैं आपको रोक भी नहीं सकता कि आप अपनी बात रखें, राइट. सो this is what we learned from the article 25, and the next article is article 26. So what article, firstly what article 25, like one slide is remaining. So what article 25 guarantees the freedom of the conscience and freedom of the profession. Okay, so it will already covered. It doesn't mean that one can force another person to convert his her religion by the force or allurement. Okay, तो किसी को बहला फुसला के या फिर किसी को फोर्सफुली लाइक हमें लाइक किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करवाना चाहिए, और ये वैसे भी एथिकली भी गलत है. और इवन तो किसी को लाइक बहला फुसला कर शादी की, या फिर पैसे देकर, या फिर कोई कमोडिटी देकर, राइट. तो बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन करवाना, so this is not like it's unlawful, right. The law does not permit a widow to get submitted alive with her dead husband voluntarily or forcibly in the name of sati pratha. Like of course sati pratha बंद हो चुकी है अभी. So besides the above stated restriction, the state also has the power to regulate any economic, financial, political and other secular activities related to religion. Okay, so hopes आपको समझ में आ गई होगी. हमें पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए. ओके, सो नाउ द आर्टिकल 26, व्हाट डज इट से, दैट फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर. सो ये कहता है कि भाई हाँ, तुम अपने इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, अपना लाइक आप खुद फॉर एग्जांपल आप मतलब किसी धर्म से बिलोंग करता है, आप अपनी इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं, ओन्स एंड एडमिनिस्ट्रेट प्रॉपर्टी, राइट. कंडक्ट रिलीजियस एक्टिविटी, आप अपने घर में पूजा रखवा सकते हैं, दुआ या फिर जो भी लाइक एक लाइक सोबीना, लाइक इस टाइप ऐसी चीज़ें बोलते हैं. सो आप रखवा सकते हैं द राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ. एक्वायर टू इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, हाँ यहाँ पे लिखा है द राइट टू एक्वायर एंड इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी. राइट टू मैनेज its own affair and matter of the religion, like there are many, the Hindu code bill, Muslim personal law. So these are the some own affairs in a matter of the religion, right. So what article 27 says, the freedom from the religious taxation. No person can be forced to pay tax for the promotion of any religion, right. So like किसी भी फॉर एग्जांपल आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हो तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो this is what we understand from article 27. So next is article 28, the freedom to and attendance at religious instructions or the religious worships in a certain educational institute. So no, लाइक फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कॉलेजेस है, राइट, या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स है, तो वहाँ पे लाइक नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शुड बी लाइक डिलीवर्ड. ओके, सो
This article permits the educational institute that are maintained by the religious group to the spread religion instructions, but no, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने कोई खुद की संस्था खोली, उसके अंदर आप अपने धर्म की या फिर अपने कम्युनिटी अपने कल्चर की बातें रख सकते हैं, बट नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेनेड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स। अगर हाँ गवर्नमेंट फंडेड है, स्टेट फंडेड है, तो वहाँ पर स्टेट मतलब यहाँ पे दोनों केसेस आगे, स्टेट हो या लाइक राज्य हो या फिर पूरा देश हो, मतलब सेंट्रल फंड्स जो होते हैं। तो अगर कोई सेंटर जैसे कि एनआईटी आईआईटीज या फिर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो स्टेट फंडेड होती है, राइट, सो वैसी कॉलेजेस के अंदर, वैसी इंस्टीट्यूट्स के अंदर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी, राइट, बिकॉज चॉइस इज प्रोटेक्टेड। ऑफ जाहिर सी बात है, वहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग होंगे, किसी को मानना नहीं मानना हो। हाँ अगर कम्युनिटी की लोग, फॉर एग्जांपल कोई, फॉर एग्जांपल हिंदू कम्युनिटी की एक स्कूल है, कॉलेज है, तो वहाँ पे ज़्यादातर मतलब 99% हो ऐसा होगा कि हिंदू बच्चे ही जाएंगे, राइट। सो इन दिस केस यू कैन प्रमोट योर रिलीजियस एक्टिविटी, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, दैट विल बी लाइक अंडरस्टैंडेबल, राइट। बट एक ऐसी संस्था जहाँ पे गवर्नमेंट फंड कर रही हो, वहाँ पे आप अपनी लाइक चला नहीं सकते, बिकॉज लाइक इट्स फंडेड एंड इट्स फॉर लाइक इट्स फॉर एवरीवन, राइट। सो ये थोड़ी बारीकी से हमें समझना है, और इट्स इंश्योर द रिलीजियस हार्मनी, प्रिवेंट like theocracy and discrimination, balance individuals faith and constitutional order। so एक निजी कि भाई मैं क्या मान रहा हूँ वो, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर को बैलेंस करने के लिए ये आर्टिकल खास करके लाइक आर्टिकल 28 है। तो आर्टिकल 25 से और 28 तक that's guarantee the freedom of religion while establishing India as a secular state that's remain the neutral towards the all faith। I agree that India is a Hindu majority country, but the Constitution of India जब बना, like it takes many times and about 65 lakhs rupees it cost, as we cover in the previous lectures। So we can understand that how it's a rational Indian constitution is, right? So we are moving toward the next slide, the education institute administered by the state but there were established under any trust which require the religious instruction shall be imparted in such institution is exempt from the above clause that no religion instruction shall be provided। हाँ अगर कोई सब सब सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, तो वहाँ पे समझी जा सकती है कि हाँ यू कैन गिव द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। एनी पर्सन हु अटेंड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फंडेड बाय द स्टेट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन एनी रिलीजन इंस्ट्रक्शन अनलेस ही और सी has given consent for the same। in the case of the minors and the guardians should have the given consent for the same, right। for example कोई छोटी संस्था है जो छोटे बच्चों के लिए है, तो उनके गार्डियंस को ये कंसेंट होना चाहिए, राइट। उनको पता होना चाहिए कि भाई हमारे बच्चों से क्या करवाया जा रहा है। ओके, सो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इट्स कवर्ड फ्रॉम आर्टिकल 29 and 30। so we are moving to the okay, so we are moving to the next article। so let me see this article okay, so culture and educational right, article 29 and 30। India's largest democracy, where like actually we are the proud of largest not democracy nowadays, because we can see there are the murder of the democracy, the mother of democracy is been murdered by the many peoples of the India, including politicians and many other people in around the India। so I believe it's ये मेरा personal opinion है कि एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोगों को जागरूक होना चाहिए कि इस देश के अंदर क्या हो रहा है। हर चीज़ को क्वेश्चन करना ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि कोई भी पॉलिसी के अंदर, कोई भी स्कीम के अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ें छुपी होती है जहाँ पे कहीं ना कहीं पर्टिकुलर पर्सन को या फिर पर्टिकुलर ग्रुप को फ़ायदा होता है। like nowadays there is a one there is a one thing is trending around over the India, that's Aravali Hills, like, so I'm not talking about it's a current affairs and it's a it's a political thing and it's a controversial thing, but I would just want to mention ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यार हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है एंड डेमोक्रेसी के अंदर इस लोकतंत्र है, लोक राजा है, राइट। सो डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ द मेजोरिटी बट माइनॉरिटी आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स सक्सेसफुल वर्किंग।
देखो यार, एक चीज़ समझो, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है और उस गाड़ी के अंदर ना कुछ दोस्त जा रहे हैं, और एक दोस्त है जिसके पापा भी हैं, और वो हार्ट पेशेंट है, उनको लाउड म्यूज़िक अलाउ नहीं है, और लाउड बीट बॉक्सिंग वगैरह वगैरह, गाड़ी का जो बूफर होता है वगैरह, तो लाउड म्यूज़िक इन शॉर्ट अलाउ नहीं है। लेकिन गाड़ी के अंदर वोटिंग होती है और मेजोरिटी लोग बोलते हैं कि नहीं, म्यूज़िक तो बजना चाहिए और धूमधाम से बजना चाहिए, हम तो बस मज़े करते करते जाएंगे। लेकिन जो आदमी हार्ट पेशेंट है उस गाड़ी के अंदर है, क्या उस गाड़ी के अंदर म्यूज़िक बचाना बजाना ज़ोर ज़ोर से सही है? मेजोरिटी विंस इट डजेंट मीन जो माइनॉरिटी रह जाती है, जिन्होंने अपोजिशन पार्टी को वोट दिया था, अपोजिशन जो करंट पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, उसको अपोज के अंदर उसको क्रिटिसाइज किया था, नॉट बिकॉज they hate India, not because they are anti-national, just because to purify the schemes and policy of the current government. They are not anti-national, they are not anti-India, they are not from uh, terrorist group, they are not from outside of India, they are Indian, they are criticizing India, like they are criticizing Indian government just because के ये देश स्वर्ग बन जाए। क्योंकि जब तक आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें फिल्टर आउट नहीं होगी जो हमें करनी चाहिए। एज एन इंडियन आपको ये पता होना चाहिए कि इस देश के अंदर क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, लॉ एंड ऑर्डर का क्या खेल तमाशा बना रखा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट? सो इट्स अ एक हार्टफुल मैसेज था मेरी तरफ से, छोटा छोटा सा मैसेज था। सो टेक इट ईजी एंड टेक इट एज नॉलेज, इट्स नॉट अबाउट you know like spreading controversy and speaking uh, hate, and spreading hate around over the India. I want to just, my teachers, one of my teachers always told me ke beta, I am not teacher, I am just a person who let you think. Okay, मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सोचना सीख जाओ। This is what he wanted to say, so same thing I want to say, that I am here, I am making this video not because that I can learn you, I can make you learn. I am here because I think that I have ability to make people to do some thinking about India, do some thinking, you know like do some rational thinking, okay, regarding to the current situation of India, right? So moving forward, therefore the protection of the language, culture and religious religion of the minorities become essential. As the people take pride in their own culture and language, cultural and educational right are included. Okay, so Article 29 to protect the interest of the minorities. This article is intended to protect the interest of the minority group. Article 29 1 ये कहता है कि any minority group reside in India having the distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. हाँ, like it's a very it's all these things are written in very simple English, so you all can understand what I'm trying to say, right? This right is a absolute right. There are the no reasonable restriction in the interest of the general public here. अगर मैं अपनी अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्चर्स को अगर बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको कंजर्व कर रहा हूँ, तो ये मेरा पूरा हक है, इन एब्सोल्यूट राइट है ना, ये मेरा पूरा मुकम्मल हक है मेरा। ओके, सो आर्टिकल 29(2) ये कह रहा है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई द एडमिशन into the educational institute maintained by it and those that receive the fund from it to any person on basis of the race, religion, caste, language, etc. This right has given to the individuals, not any community. Okay, so this is a given to the each and individual person, not any you know एनी कम्युनिटी के भाई हाँ ये इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो इसी को ही देनी चाहिए। सो दिस इज़ नॉट लाइक ओके। नाउ द आर्टिकल 30, द आर्टिकल 30 ये कहता है कि जो फर्स्टली यहाँ पे लिखा है कि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आर्टिकल 30 जो है वो एक स्ट्रेटेजी है, सेफ गार्ड ऑफ द माइनॉरिटी एजुकेशन एंड आइडेंटिटी, राइट? तो आर्टिकल 30 जो है वो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को प्रिजर्व करता है, राइट, देयर कल्चर थ्रू द एजुकेशन विद प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेट बायस, राइट? So this right is given to the minorities from the equal. Okay, the article 31, all religious and linguistic minorities have the right to establish and administer educational institute of their choice. तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था लिस्ट के अंदर। The state should not
should not, when granting aid to education institute, discriminate against any educational institute on ground that it is under the management of the minority, whether based on religion or language. जब स्टेट अपना फंड रिलीज करे, जब स्टेट अपना फंड डिस्ट्रीब्यूट करे, तो वो स्टेट इस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कि ये पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये मैनेजमेंट है उस पर्टिकुलर माइनॉरिटी के अंडर, राइट. सो ऑन बेस ऑफ रिलीजन एंड ऑन बेस ऑफ लैंग्वेज. सो ये आप समझ सकते हैं. ओके, सो डू यू नो this for the knowledge. So minority does not mean the minority in a national level. कि for example इंडिया के अंदर about 22% of Muslims है, right. So there can be minority in a state level, and Sikh majority in Punjab, but they are minority community in Delhi, Rajasthan, Haryana, and many other states. Likewise, Muslim are the majority in states like I think West Bengal, and I think some other state like Kerala. Yes, so there are some state where the Muslims are like in majority, but in their case the Hindu are the minority. But overall in India, Hindu are the majority, but there are many states like Gujarat, Maharashtra, MP, like Rajasthan, there the Hindus are majority. But yes, there are the minority in a on base of language. There means there are the many dialects speaking in a particular region. For example, there are five, or I think yes, five dialects in Gujarat. There are 5 to 6 dialects in Bihar, UP. So there are different uh, culture and different like the similar language. For example, it's Gujarati but different है, मतलब गुजराती तो है ही but अलग है. जस्ट फॉर एग्जांपल आपको पता होगा, फॉर एग्जांपल मतलब ये ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि भाई हाँ भाषाओं में चेंज होती है. फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल के अंदर जो बंगाली बोली जाती है वो नॉर्थ बंगाल के वेस्ट बंगाल के अंदर अलग बोली जाती है, और मेदिनीपुर फिर कोलकाता के अंदर थोड़ी अलग बोली जाती है, लाइक हावड़ा के अंदर अलग बोली जाती है. तो थोड़ी देर आर सम डिफरेंसेस इन डायलैक्ट्स, राइट. सो उनकी भी एक माइनॉरिटी होती है, उनकी भी मेजोरिटी, उस बेसिस पे भी इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं. सो there is no discrimination in between this. Similarly, Telugu, Kannada, Bangla speaking people are minority in most of state in except India their own Andhra Pradesh, Karnataka, West Bengal respectively, right. So for your information, Article 31 right to property was deleted from the Part 3 fundamental rights of the Constitution. It was deleted by the Constitution 44th Amendment in 1978. Article 31 modified version was inserted in Article 300A as a legal right, but not as a fundamental right. Article 300A allows the state to take property, land, building, etc. of the person for development purpose, railway, hospital, college, school, colleges, special economic zone, etc. It also provides that compensation should be paid to the person whose property has been taken for the public purpose. तो ये आपको पता चल गया होगा इसके अंदर क्या समझाने की कोशिश हो रही है. सो होप you are not confused here. So Article 32 says about, so it says the person has a right to move to Supreme Court and High Court also for the getting their fundamental rights protected. Supreme Court has the power to issue written order issued by the Supreme Court under the Article 32 to protect the fundamental rights of the citizens from the वायलेशन. सो आर्टिकल 32 को सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. एंड लाइक वी ऑल्सो नो दैट ही इज़ वन ऑफ द चेयरपर्सन while writing the article. It's guarantee what it guarantee. तो ये गारंटी करता है कि एवरी पर्सन हैज़ राइट टू डायरेक्ट अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट. मैं एक आम इंसान भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. एंड नो प्रोसीजरल में स्ट्रेट एक्सेलेशन. आपको लाइक हायरार्की फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह वगैरह आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो. ओके, so power of the Supreme Court under the Article 32, the Supreme Court can issue the right of formal written order to stop the violation, types of the rights like habeas corpus, release from the illegal detention. Okay, फिर mandamus order to perform the public duty, prohibition to stop the lower court from the exceeding authority. फिर certiorari quash of the illegal order, quo warranto challenge illegal occupation of the public office. This is the enforcement tool, not theory. Okay,
सो आर्टिकल 32 इज ऑफ कोर्स इज अ क्रिटिकल, ये बहुत क्रिटिकल है. कन्वर्ट राइट्स इनटू रेमेडी, टेक सुप्रीम मेक्स अ सुप्रीम कोर्ट द गार्डियन एंड अ गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. और इट्स प्रिवेंट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्सेस. मतलब कोई एमएलए या फिर कोई पुलिस, जैसे कि एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है, पुलिस फोर्स है ना. तो ये सारी चीज़ों को अगर इसकी इनकी हद पार अगर हो जाती है तो फिर आपकी लाइक सुप्रीम कोर्ट है वो बीच में दखल देगी अगर आप डायरेक्ट अप्रोच करते हैं तो. राइट. सो नेक्स्ट आर्टिकल 33. आर्टिकल 33 जो 35 है, दैट्स सपोर्ट द सिस्टम. पार्लियामेंट कैन रेस्ट्रिक्ट द राइट्स, रेस्ट्रिक्ट राइट्स ऑफ द आर्म फोर्स, पुलिस एक्सेट्रा. सो आर्टिकल 33 ये कहता है कि सॉरी, सो आर्टिकल 33 ये कहता है द ऑपरेशन discipline over the absolute liberty. Okay, so it's empower the parliament, not state legislator, to restrict the fundamental rights of the member of the armed force, paramilitary force, police force and intelligence service. The objective of the provision to ensure the proper performance of their duties to maintain discipline among the armed force. Here the member of the armed force also covers such employees of the armed force as a barber, carpenter, mechanics, cooks, tailor, who are the non combatants. देखो यार, जो आर्म फोर्स होता है, जो आर्मी होती है, वो हमारी तरह आम इंसान तो नहीं हो सकते, हालांकि वो आम इंसान ही हैं, बट उनकी जॉब के लिए जो जो इंटेलिजेंस सर्विस है, जो लाइक इट्स अ सिक्योरिटी फॉर अ सिक्योरिटी पर्पस, राइट. तो उनकी जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्लियामेंट पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट करती है कुछ. ओके. और उनके यहाँ फॉर एग्जांपल जो आर्मी के लिए जो खाना बनाती है, उनके कारपेंटर होंगे, उनके बार्बर होंगे, उनके मैकेनिक्स होंगे, उनके टेलर होंगे जो उनके कपड़े सीते होंगे. सो उनकी डिसिप्लिन के लिए, उनकी कमांड कंट्रोल के लिए, है ना, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी ड्यूटी की परफॉर्मेंस के लिए ये फंडामेंटल राइट्स की उनको कुछ कुछ ना कुछ पाबंदियाँ लगाई जाती है ना, क्योंकि उनको मिशन पे जाना होता है. ओके, दे आर अ सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, सो दिस शुड बी नॉट बी टॉलरेबल. ओके. सर्विस रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइक उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगी, वो एसोसिएशन फॉर्म नहीं कर सकते, मूवमेंट कैन बी लिमिटेड, वो जब चाहे कहीं भी जा नहीं सकते, राइट. सो ये कुछ लाइक कुछ वजह से ये रखी गई है. और ये वजह ये है कि देश की सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी विद कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़, है ना, प्रिजर्व यूनिटी इन कमांड. ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कि एक आर्मी है, जिस एक जनरल है, उसके अंडर 100 आर्मीज है, राइट. तो एक जनरल कुछ कमांड कर रहे हो और एक बंदा बोल रहा है कि नहीं नहीं, मुझे तो अभी वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, मुझे तो ये नहीं करना. सो फिर वो बैलेंस नहीं होगा, यूनिटी एंड कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड खत्म हो जाएगी, राइट. सो वो एक डिसिप्लिन को भी फोर्स करता है. ओके. सो आर्टिकल 34, नाउ वी आर मूविंग टू द आर्टिकल 34. सो आर्टिकल 34 कहता है the restriction of the fundamental rights while martial law is in force. Article 34 provides the restriction of the fundamental rights while the martial law is a force in any area within territory of India. So जब एक्सट्रीम सिक्योरिटी सिनारियोज होते हैं तब ये लॉ लाइक आई एम सॉरी एनफोर्स किया जाता है for the restriction of the fundamental rights in any area while martial law is in force. Okay, so it's not about कि for the particular interest the military rule replace the civilian administration, civil authority step back, military authority governs using the special rules, ordinary law or the suspended offense may be treated as military tribunal. अगर आप उस वक्त फॉर एग्जांपल कर्फ्यू लगा है तो उस केस के अंदर आप बाहर नहीं निकल सकते, उस केस के अंदर आप बाहर घूम फिर नहीं सकते. फॉर एग्जांपल कोई टेरर अटैक हुआ है या फिर कंट्री के, दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर चल रहा है, तो इस केस के अंदर लाइक यहाँ पे लिखा है वॉर, इन्वेजन, रेबेलियंस, राइट्स एंड एनी अदर वायलेंट रेजिस्टेंस टू द लॉ. तो इस केस के अंदर आप बाहर घूम नहीं सकते, घर के बाहर जा नहीं सकते, है ना. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स लगाई जाती है. उस मोमेंट के अंदर आप रैलीज नहीं निकाल सकते, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती है. नाउ द आर्टिकल 35 द इफेक्टिंग द ये जो आर्टिकल 33 से 35 है वो सिस्टम के लिए है, मीन्स जहाँ पे सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा. ओके. सो व्हाट डज आर्टिकल 35 सेज अस, दैट्स अ सेंट्रलाइज द लॉ मेकिंग फॉर द कोर फंडामेंटल राइट्स. ओके. सो आर्टिकल 35 बेसिकली हमें एक अथॉरिटी देता है पार्लियामेंट को
not state legislature to make law and that gives effect to the certain fundamental rights. For example, कुछ you know लाइक पनिशमेंट्स को बताने के लिए कि भाई किस आई मीन किस फंडामेंटल राइट्स को तोड़ने से कौन सी पनिशमेंट मिलेगी, तो ये पार्लियामेंट के अंदर तय होगा. ओके, सो द यहाँ पे लिखा गया है to give effect to the certain specific fundamental rights shall be only in parliament. Okay, this provision ensure that there is a uniformity throughout the India with regards to the nature of those fundamental rights and also the punishment for their violation. Okay, तो आर्टिकल 17 को लाइक अगर आप तोड़ते हैं, सो पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट एंड एनफोर्समेंट फॉर द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 17. अगर आप आर्टिकल 17 तोड़ते हैं तो क्रिमिनलाइज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रैक्टिस. अब आर्टिकल 23 को तोड़ते हैं आप अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर या फिर फोर्स लेबर के अंदर इन्वॉल्व है, तो उसके अंदर जो आईपीसी इंडियन पैनल कोड के थ्रू आप पे जो कार्रवाई होगी, जो आप पे चार्जेस लगेंगे, उसके ऊपर ये सारी बातें हैं. ओके, सेम द आर्टिकल 35, इसके अंदर जो आगे है आर्टिकल 16, आर्टिकल्स 32, आर्टिकल 33, 34 ना, सेफ गार्ड ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, सेफ गार्ड ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट डन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द मार्शल लॉ इन एरिया. राइट, सो आर्टिकल 34 ये भी मतलब इंश्योर करता है restricting the application of the fundamental rights to the member of the armed force. Okay, ये सारी चीज़ें है ना. द आर्टिकल 32, द empowering the courts other than Supreme Court and High Court is to issue direction, order and writs of all kind for the enforcement of the fundamental rights. Okay, यहाँ पर आर्टिकल 16 कहता है द प्रिस्क्राइबिंग द सिटीजन एज अ कंडीशन फॉर द कर्टन अपॉइंटमेंट इन द स्टेट ऑन द यूनियन टेरिटरी. तो आर्टिकल जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होके डिबेट होकर है ना, दो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी डिबेट करके ये कुछ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लाइक पनिशमेंट्स क्या होनी चाहिए, इस पे क्या मतलब इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, इस पे डिबेट करके इसको चेंज कर सकती है. और ये राइट लाइक पार्लियामेंट को दिया गया है. ओके, तो फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, खास करके जो फर्स्ट जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहता है कि डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी लीगल राइट्स. तो जो यहाँ पे कहा गया है कि हर इंसान का हक है कि अपना जो फंडामेंटल राइट्स है उसको एंजॉय कर सकता है. अगर किसी ने उसको वायलेट किया तो लोअर कोर्ट है ना, द पर्सन कैन नॉट, यहाँ पे लिखा है द एग्रीवेट पर्सन कैन नॉट डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट बाईपासिंग द लोअर कोर्ट. ही और शी शुड अप्रोच द लोअर कोर्ट्स. बिकॉज देखो यार, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके अंदर बड़े बड़े मुद्दे जो तय किए जाते हैं जो नेशनल लेवल पे होते हैं, तो पहले छोटे कोर्ट के अंदर वो पहले सबसे पहले बोलेगा कि हाँ मेरी जो फंडामेंटल जो मेरा हक है वो छीना गया है, और उसके बेस पे फिर वहाँ पे अगर उसको जो जजमेंट मिलती है अगर वो उस पर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर वो हायर कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर. ओके, सो नाउ द सेकंड थिंग, द सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू द ऑल सिटीजन वाइल द रेस्ट फॉर द ऑल पर्सन सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स. ओके, number 3, the fundamental rights are the not absolute rights. They are the reasonable restriction, which means they are the subjected to condition of state security, public morality and decency and friendly relations with a foreign countries. Okay, तो यहाँ पे जो नंबर 2 पे है, यहाँ पे बोला गया है कि some fundamental rights are available to all citizen while the rest are the for the all persons. मतलब कुछ fundamental rights जो सिर्फ सिटीजन के लिए होंगे, उसमें से जो है कि आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 19 हो गया. जैसे कि आर्टिकल 19 जो है यहाँ पे लिखा गया है कि प्रिवेंशन अगेंस्ट द आर्बिटरी अरेस्ट एंड डिटेंशन. तो आप किसी भी सिटीजन को लाइक ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते, और हत्या के लाइक फॉरेनर को भी नहीं कर सकते वैसे, बट दैट शुड बी रीज़न. ओके, नाउ आर्टिकल 16 राइट टू रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच. कोई फॉरेनर बंदा आके इंडिया के अंदर कुछ भी नहीं बोल सकता, ऑफ कोर्स. एंड आर्टिकल 15 राइट टू फ्रीडम, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट बातें हमने देखी. ओके, सॉरी, आर्टिकल
आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन। उस बेसिस पे जो भी राइट्स है वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। और जो फॉरेनर के, जो ऑल पर्सन, कहीं कोई इंसान कहीं का भी हो, तो आर्टिकल 14 जो है कहता है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, है ना। सो इट्स फॉर सिटीजन। आर्टिकल 20 जो कहता है कि द प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस। तो उसको बताया जाता है कि भाई हाँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है द प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंस। The Article 20 deal with the protection of citizen in respect to the conviction for offence. These provide the three types of the protection for the individual against the state. तो ये स्टेट की अगेंस्ट, मतलब कोई गवर्नमेंट या फिर कोई भी स्टेट की पार्टी आपको अपने मर्जी से लाइक ये इस 3 केस के अंदर नहीं फंसा सकती। फॉर एग्जांपल, जो कानून अब बना नहीं है उसके लिए सज़ा आपको नहीं होगी, आपकी एक गलती की वजह से आपको दोबारा सज़ा नहीं दी जाएगी, और आप खुद को ही दोषी ठहरा नहीं सकते, है ना। तो ये सबके लिए है। और आर्टिकल जो 21 है, जो राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, तो ये हर इंसान के लिए है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नंबर 4, दे आर जस्टिसेबल। आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स के उसके अंदर नंबर 4 है, वो कहते हैं कोर्ट कैन एनफोर्स, प्रोटेक्ट एंड रेमेडी वायलेशंस, एंड इंडिविजुअल कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट एज पर द आर्टिकल 32, हाई कोर्ट्स एज पर आर्टिकल 226. Rights without remedies that does not exist, here they do. Okay, so फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से लाइक आप डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। सो नंबर 5 ये कहता है कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होकर कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड किया जाता है, उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन जो अमेंडमेंट है, जो चेंज होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ना ही उसको बदलेगा, है ना। सो पावर एग्जिस्ट, अब्यूज डजेंट। ओके, नंबर 6 ये कहता है द सस्पेंशन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, कि जब इमरजेंसी के दौरान, जब हमें पता है कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जाते हैं, बट द राइट्स गारंटी अंडर द आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। जो आर्टिकल 20 और 21 कहता है कि आपको कोई भी, जैसे का आर्टिकल यहाँ पे क्या लिखा है, आर्टिकल 20 एंड 21 कहता है कि भाई आपको बताया जाएगा कि आप किस वजह से आपको लाइक अरेस्ट किया जा रहा है, और आपकी ज़िंदगी और आपकी पर्सनल लिबर्टी की भी आपका हक है, तो ये आपसे छीना नहीं जाएगा इवन इन केस ऑफ द इमरजेंसी। नंबर 7 ये कह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग द मार्शल लॉ, है ना, मिलिट्री रूल के द एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड इन अ एरिया विच हैज़ अ प्लेस अंडर द मार्शल लॉ और द मिलिट्री रूल। जब प्रेसिडेंट रूल आएगा या फिर मिलिट्री रूल, तब उस केस के अंदर कुछ फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्ट किए जाएंगे। ओके, सो कंक्लूजन ये हो गया कि फंडामेंटल राइट्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर लाइक द बैकबोन ऑफ द कंट्री, दे आर एसेंशियल फॉर द सेफगार्डिंग द पीपल्स इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 13, ऑल लॉ that are the violation of the fundamental rights shall be avoided. Article 13 talks about the not just laws but also the ordinance, order, regulation and notification, etc. So uh, here there is a express provision for the judicial review. The Supreme Court and the High Court can declare any law unconstitutional on a ground that it is a violative of the fundamental rights. Okay, so यहाँ पे जो आखिरी बात लिखी है कि आफ्टर द जुडिशल रिव्यू, है ना, कि जब जजेस एक किसी चीज़ को या फिर किसी कानून को रिव्यू करेंगे, उसको अच्छे से जज करेंगे, जो जूरी टीम होगी उसको अच्छे से देखेगी, उसको उसकी जांच पड़ताल करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन ग्राउंड दैट इट इज़ अ वॉलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर कोई ऐसा कानून या फिर कोई ऐसी चीज़ बना रखी है सरकार के थ्रू, पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसी लॉ पास कर दिया गया कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ऑन ग्राउंड दैट इज़ अ वॉलेटिव, फंडामेंटल राइट्स को अगर छीन रही है, तो उस केस के अंदर उस लॉ को खारिज कर दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, राइट। सो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ख़ास करके मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो फंडामेंटल राइट्स है
आपको जानना बहुत ज़रूरी है. एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एज एन इंडियन. Not just you are studying the Indian constitution, you have to give exam, you have to crack exam, you have to clear exam, you have to pass out the exam. Not because this, but just this is important because you are Indian, you have to live in India, you are the part of the India, and you are the citizen of India. So thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.